ही कण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हऊँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वड दाना कर मेहरमत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुध ध्याई। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ तेरी कवन वडाई। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। सुकहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसिय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिवत खसम दे नूर अरसों कुरसों चट्टीऐ। तुद डिठै सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह। वाहिगुरु जी केदारा महला पंजवा। प्रीतम बस्त रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर। गैले हो अपनी ओर प्रीतम बस्त रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर। गहले हो अपनी ओर रहाओ। अदक गर्त संसार सागर कर दया चारो हो तोर। संत संग हर चरण बोहित उदरते लै मोर। गर्भ कुंड में जिन्हें तारियो नहीं बिखै मन में होर। हर सकत शरण समरथ नानक आन नहीं निहोर। गर्भ कुंड मह जिन्ह तारियो नहीं बिखै बन में होर। हर सकत शरण समरथ नानक आन नहीं निहोर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सर्ब कला समर्थ सतगुरु चौर छत्र तख दे मालक जहरा जहूर अते हाजरा हजूर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण सरन विच सुभाईमान वड भागी गुरु सवारी सतसंगी जनों। वाहिगुरु जी की अपार कृपा सदका अमृत वेले गुरु के दर्शन दीदार करन दा
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਭਰਮ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੜਪ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਤਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਮਕਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ ਸਕੀ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਤੜਫ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤੜਫ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਤਨੇ ਯਤਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
पहली गल, जे मनुख दे अंदर भरम है, जे मनुख दे अंदर अवगुण ने, तो इन्हां अवगुणां ते भरम तो मुक्त होने दे लई ताकत भी मनुख दे अंदर ही है, वो कितों बाहरों नहीं मिलनी, वो भी मनुख दे अंदर है। जे शरीर दे अंदर चोर ने तो अमृत भी अंदर बैठा होया है, खजाना भी मनुख दे अंदर है। पर उस समर्था का सानू पता लग जाए, जदों भी सानू दुखों तो मुक्ति मिलनी है तो वह किसी ने नहीं दवानी, जदों भी साडा उधार होना है वह किसी ने नहीं करना। उधार साडी अंदरले बल ने करना है, पर वह बल दा सानू ज्ञान गुरु पासों मिलना है, सोझी गुरु पासों मिलनी है। उस बल नूं प्राप्त करने के लिए समर्था जिहड़ी वो सतसंगत विचों आके मिलनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो रहमत करके सानू बचन कह रहे हैं, आओ आपां मिल के गुरु के इन्हां पवित्र बचनों की विचार सांझी करिए। सतगुरु जी के प्यार में जुड़ते हैं, मन बिरतियां नूं टिकाउंदे हैं, मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। केदारा महला पंजवा, प्रीतम बस्त रिद में खोर, परम पीत निवार ठाकुर, गहले हो अपनी ओर। गुरु साहिब जी दे ये अमृत बचन सतगुरु जी दे पावन अंक 1121 अंक ते सुभायमान ने। गुरुदेव अरदास कर रहे ने कि प्रीतम बस्त रिद में खोर। प्रीतम दर्थ ओ प्यारा वाहिगुरु जी जड़ा साडा बड़ा ही मन नूं वधिया लगन वाला, प्यारा लगन वाला परमात्मा है। ये मेरे वाहिगुरु जी बस्त रिद में खोर। खोर दर्थ हुंदा खोट, खोर दर्थ हुंदा है जिन्हों आप कान कह सकते हैं, कीना कह सकते हैं। ये वाहिगुरु जी मेरे हिरदे अंदर ना खोट है, कोरापन है, भाव मैं अंदरों पवित्र नहीं हाँ। मेरे अंदर कोरापन दर्थ के तुहाडा प्यार नहीं है, दुनिया का प्यार है। अंदरों मैं खोटा हाँ, अंदरों मैं तुहाडे प्यार तो रहत हाँ। हे वाहिगुरु जी परम पीत निवार ठाकुर, कर गहले हो अपनी ओर। इस खोर का कारण, इस खोट का कारण, इस कोरेपन का कारण यह है कि मैं भरम विच हाँ। भरम मैनू ये है कि दुनिया का यह पदार्थ ही सैथ मेरा साथ दे देंगे। भरम मैनू ये है कि मैं दुनियावी रिश्तेदारां नूं ही सब कुछ समझ बैठा हाँ, दूजे लगा हेठ। एक परमात्मा नालों टुट के जदों भी आपां दूजे बन्ने लगदे हाँ, गुरबाणी कहंदी दोए भाए विगुचीए गल पई सुजम की फास। दूजे भाव विच जाके आपां हमेशा ही विगोचे च रहिंदे आ, घाटे च रहिंदे आ। दूजे भाव च हमेशा ही भटकना बनेगी। दुनिया की कोई भी चीज़ सदा कायम रहने वाली नहीं है, सदा सुख देने वाली नहीं है। असी यतन करके एक प्राप्त करते हैं, फिर मन की रीझ पूरी नहीं होती, दूजी मगर जाने, फिर भुख पैदा होती, तीजी मगर जाने। ये सारी जिंदगी बनी रहती है क्योंकि असी भरम विच आ। जिवें हिरन दूर चमकदी रेत नूं पानी समझ बैठा, उहदी खातर भज्जा जांदा है, वो दिखदा होया पानी अगे अगे तुरिया जांदा है। असी भी कल्प लिया कि दुनिया च सुख है, संसार विच सुख है, केवल दुनियावी मनुखों कोल सुख है। इस करके असी उन्होंने प्राप्त करने लई यतन करते हैं। जदों अंदरली पीड़ा दूर नहीं होंदी, होर अगे तुरे फिरदे हैं। हे वाहिगुरु जी सब तो पहला मेरे ते कृपा करो, जिस करके मेरे अंदर एक खोर है, एक कोरापन है, एक खोट है, उस चीज नूं मेरे अंदरों दूर कर दिओ। वो किहड़ी है कि भरम भीत निवार ठाकुर। वाहिगुरु जी मेरे अंदर भरम की एक कंध है, भीत मेरा पड़दा हुंदा है, कंध हुंदी है। वो भरम करके ही मैनू ये सब कुछ भटकना बनी हुई है। भरम विच जो कुछ असी मनदे वो कुछ हुंदा नहीं है। भगत जी ने बचन किया सी, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मन ही है होए ना तैसा। भरम विच जो मन लेने वो हुंदा नहीं है, वो बिल्कुल उस तरह यथार्थ तो उल्ट ही समझते हैं। इस करके वाहिगुरु जी सब तो पहला मेरे अंदरों भरम भीत निवार ठाकुर। वाहिगुरु जी मेरे अंदरों सब तो पहला भरम तो मैनू मुक्त कर दिओ, भरम तो रहत कर दिओ। जिन्ना चिर मन विच भरम है उन्ना चिर जिंदगी च किते सानू कामयाबी नहीं मिलेगी। भरम अज्ञानता चों पैदा होंदे ने, ज्ञान दे नाले भरम कट्टे जांदे ने। रात दे हनेरे विच
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਭੀਤ, ਇਹ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੈ ਹੋ ਆਪਣੀ ਓਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਆਪਣੀ ਓਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਰਹਾਉ ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਤਾ ਚਾਰੋ ਧੋਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਖਾਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਨੇ, ਗਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਐਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਚਰਣਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਰਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀ ਹਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਝੜ ਝੱਖੜ ਓਹਾੜ, ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਏ ਬੇੜੇ, ਡੁੱਬਣ ਨਾਹੇ ਪਾਓ। ਇੱਥੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੇ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇਸਵਾ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਝੱਖੜ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਚਟਾਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਰ। ਕੌਣ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਰ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਚਾਰੋ ਧੋਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਕਰ ਦਇਆ ਚਾਰੋ ਧੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ
ਚਾਰੋਂ ਮਹੀਨਾ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਧੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਧੋੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਕਾ ਥਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੋੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਗਤ ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ, ਸਤ ਸੰਗ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਉਦਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ। ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ, ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਰੈਕਟਰ, ਸੁਭਾਵ। ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਔਗਣਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਉਦਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਭੱਟ ਦੇ, ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੇ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਬੁਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ,
त्यों गुरु का शब्द मन है अस्थम्मन। जदों गुरु के चरणों की गल है तां भी सतगुरु जी ने शब्द नूं ही किया, हिरदे चरण शब्द सतगुरु को नानक बंदियो पाल। नानक ने अपने हिरदे विच गुरु दे शब्द रूप चरणों की पाल बन लई। गुरुदेव इत्थे जदों चरणों की गल करते हैं, वाहिगुरु जी के चरणों की गल, क्योंकि गुरबाणी च वाहिगुरु जी के चरणों का वार वार जिक्र आया। गुरु साहिब जी के किन्ने सोहणे बचन कि हर चरण कमल की टेक सतगुर दिती तुछ कै बलराम जीओ। मैनू मेरे गुरु ने वाहिगुरु जी के चरण कमलों की टेक दे दी, आसरा दे दिता। हुण वाहिगुरु जी के चरणों का अर्थ है वाहिगुरु जी का सुभाव, वाहिगुरु जी के गुण, वाहिगुरु जी की सिफत सलाह। गुरुदेव कहते हे वाहिगुरु जी मेरे ते कृपा करो, संत संग हर चरण बोहित उदरते लै मोर। हे वाहिगुरु जीओ संत संगत विच गुरु की हजूरी च आके हर चरण बोहित, वाहिगुरु जी के चरण ने जो जहाज की नियाई ने उन्हों का मैनू आधार बख्शो, तो मैं वाहिगुरु जी के चरणों का आसरा लैके अपना उद्धार कर सकां। जदों भी मनुख का उद्धार होना है वो किसी उच्ची चीज़ नाल जुड़ के ही होना है। दुनिया की हर चीज़ हर व्यक्ति आपां देखते हाँ वो साडा उद्धार करने की समर्थ नहीं है। जिधर भी तुसी आसरा लोगे उत्थे कोई ना कोई तुहानूं ऊणता ही नज़र आई जाएगी। कोई मनुख संपूर्ण नहीं है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। माया जिहड़ी आप भटकना दे विच है, माया का सुभाव दसिया सतगुरु जी ने कि माई माया छाल तृण की अगन मेकी छाया गोबिंद भजन में हड़ का जल। ये माया ते हड़ दे पानी वांगू है, कदी आ गई कदी चली गई। ये धन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए। माया चंचल है, माया थिर नहीं है। माया नाल जुड़ के असी अपनी मत नूं थिर कर ही नहीं सकते। माया गुजरान है पर माया साडा उद्धार नहीं कर सकती, सानू दुखों तो जां भटकना तो बचा नहीं सकती। कोई मनुख भी सानू भटकना तो बचा नहीं सकता। भटकना दे विच साडी सुरत है, तो सुरत दे लई सब तो वड्डा आसरा शब्द ही हो सकता है। सुरत लई सब तो वड्डा आसरा जिहड़ा है वो वाहिगुरु जी की सिफत सलाह हो सकती है। सतगुरु जी कहते कोई भी मनुख जिहड़ा बहुत चिंता दे विच होए, दुखां दे विच होए, बड़ा अपनी जिंदगी के अंदर घुमण घेरियां च फसिया होए, उहदे लई जितने मर्जी साधन कर लो वो इन्हां तो बच ही नहीं सकता। सहस्कृति श्लोकां सतगुरु जी का एक प्यारा वचन है, क्योंकि दुनियावी तौर पर जिहड़े लोग यतन करते हैं, कोई पहाड़ों पर जाके बैठ जाता है, कोई पताल विच डूंघे भूरे पुट के बैठ के सोचता मन टिक जाएगा, कोई पानी च खलो के तप करता है, कोई धूणियां ता के तप कर रहा है। अनेक तरीकों के नाल मनुख यतन कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ये विचों सफलता नहीं मिल रही। गुरु अर्जन देव जी ने एक गल की, गिरंत गिर पतत पातालंग जलंत दै दीप बैसंत रह बहंत अगा तोंग तरंगन दुखंत ग्रह चिंता जन्मंगता मरण। कोई घर दीयां चिंतावां तो बचण दे लई, कोई जम्मण मरण के दुखों तो मुक्त होने के लिए पहाड़ ते चलिया जाए, पहाड़ तो डिग जाए, पताल में चलिया जाए, पानी में चलिया जाए, अग में बैठ जाए, अग के भांबड़ां च भावें अपने आप को साड़ ले। धूणियां ता के दूर दूर बैठने तो मामूली जिहा कर्म है। कईयां ने बड़ी बड़ी दूर लाइया होंदियां ने धूणियां और लोगों को दिखाउंदे कि असीं बड़ा तप कर रहे हैं। सतगुरु जी कहंदे कोई अग में साड़ी जाए हाँ भावें, इन्हां कुछ कर ले। दुखंत ग्रह चिंता जन्मंगता मरण, घर दीयां चिंतावां दा दुखाया होया जां जम्मण मरण दे दुखां तो बचण दे लई इन्हां तो इलावा होर जितने मर्जी साधन कर ले। अनक साधना सिद्धिया ते नानक, हे नानक जी होर अनेकां साधन कीतियां भी मनुख नूं सफलता नहीं मिलनी। इको एक साधन है अस्थम्मं 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 शब्द साध सुवजने। गुरुदेव कहते साडी सुरत टिक सकती है, साडा उद्धार हो सकता है, साडा मन टिक सकता है। किवें? केवल गुरु के शब्द का आसरा लैके। गुरु का शब्द जिहड़ा वो साडी जिंदगी की सब तो बड़ा आसरा है। गुरु का शब्द ही गुरु के चरण ने, गुरु के शब्द अंदर रब्बी गुण ने, परमात्मा की सिफत सलाह है, ये परमात्मा के चरण ने। जिहदा गुरु चरणों नाल प्यार बन गया, वह परमात्मा के चरणों नाल प्यार बन गया। जिहदा गुरु के शब्द नाल प्यार नहीं बनिया, वह परमात्मा नाल प्यार किवें बनेगा? परमात्मा सानू दिसदा ही नहीं है। देखो परमात्मा निराकार है। कोई मनुख कहे जी मैं सीधा ही परमात्मा नूं मिल पावांगा, बिल्कुल यह अकार्थ गल है। जिवें जमीन का ते आसमान का कभी मेल नहीं ना हो सकता।
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਈ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ, ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਤ ਕੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। परमात्मा ने जिहड़ा पूरा ये पसारा बनाया है बराबर है, इको जिहा है। और इस सारे प्रपंच के अंदर थाट के अंदर परमात्मा ने नाम की वडियाई रखी है। नाम तो बिना परमात्मा नाल सांझ नहीं बननी, नाम तो बिना साडा उधार नहीं होना, नाम तो बिना और जितने मर्जी असीं कर्म कर लीए। ते अगली गल कि नाम नाल सांझ बनती किवें है? सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना, ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। जिन्हों गुरु की मत मिल जाए, जेड़ा गुरु की बाणी नाल जी करके जुड़ जाए, ਉਹਦੇ अंदर परमात्मा का नाम वसदा है। ये बाणी जो जियो जाने, इस करके सतगुरु जी इत्थे भी कह रहे वाहिगुरु जीओ मेरे अंदर बहुत वड्डा भरम है, जिस भरम करके मैं संसार समुद्र दे विच गोते खा रहा, जिथे बड़े बड़े डूंघे टोए ने, बड़े बड़े डूंघियां खड्डां ने, जिंदगी की इस बेड़ी नूं तबाह करने के लिए अनेक तरह के साधन ने। जिंदगी की बेड़ी तबाह किदां हुंदी है? कोई बंदा आर्थिक पक्ष तो डिग जाए जां करैक्टर के पक्ष तो डिग जाए, आपां कहने इहदा बेड़ा बह गया, हालांकि वह चंगा भला तुरिया फिरदा, आपां कहने इहदा बेड़ा बह गया। मनुख का किरदार के पक्ष तो जां होर किसी पक्ष तो गिरावट आ जाए, आपां कहने आ बेड़ा बह गया। इत्थे बेड़े का अर्थ है कि मनुख की शख्सियत, मनुख का किरदार। गुरबाणी च एक थां ते बड़े प्यारे बचन सतगुरु जी ने कहे कि सानू ये जीवन मिले है कि जिंदगी के अंदर असीं अपने अंदर कोई शख्सियत कायम कर सकीए, कोई एक करैक्टर सिरज सकीए। वो जिहड़ा करैक्टर है, किरदार है, वो दरअसल जहाज है, बेड़ी है, जिन्हें सानू इन्हां बुराइयां तो बाहर कढ़ना है। होर कोई साधन नहीं है। सानू टाइम दिता है परमात्मा ने जिंदगी का, तो जदों असी इस टाइम वाल नज़र ना मारी तो भगत जी ने एक गल की, बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला। हर मनुख की जिंदगी च औखा टाइम आना है। वो औखा टाइम ये जरूरी नहीं कि आर्थिक पक्ष तो होएगा, आर्थिक पक्ष तो मजबूर होंदियां भी मनुख की जिंदगी च औखा टाइम आउंदा है। जिहड़े आर्थिक तौर पर तगड़े कि उन्हां दी जिंदगी च दुख नहीं है, बड़े बड़े तगड़े दुख ने आपां देखदे हां। हर मनुख की जिंदगी च सागर है, समुंदर है, घुमण घेरियां च मनुख ने फसना ही है, हर मनुख ने। ते वाहिगुरु जी ने सानू ये जिंदगी ये स्वास दिते कि असी इस समुंदर चों बाहर निकलण दे लई कोई तैयारी कर सकीए, कोई बेड़ा कोई जहाज बना सकीए। जिहड़े दरियावां दे कंढियां ते रहिंदे ने, जां आपां देखदे हां जिन्हां इलाकिਆਂ च वर्खा दे दिनां च पानी पूनी चढ़ जांदा है, वो लोग वर्खा तो पहले तैयारी रखते हैं कि जो कि मीह पेगा, पानी चढ़िया तो आप पार अपने खेतों या अपने दूजे बन्ने जाना है, वो तैयारी रखते हैं पहला ही। उन्होंने साधन बनाए होंगे ने, कोई लकड़ियां दे नाल, कोई घड़े दे नाल, जां होर कई साधन करके पार उतरन के साधन बनाए होंगे ने। तो बाबा फरीद साहब जी कहते परमात्मा ने दिता मौका जिंदगी का कि ये अंदर असी को अपना एक किरदार, एक शख्सियत पैदा करिए, मनुखता के पक्ष तो मजबूत होइए। जिंदगी का जो भी काम असी करते हैं वो साडी जिंदगी के अंदर एक शख्सियत पैदा करता है। वो काम भावें चंगा है तो भावें माड़ा है।
जे माड़े काम करांगे साडा माड़ा किरदार बन जाएगा, दुनिया सानू बुरा कहेगी, फिक्के फिक्की सोए बन जाएगी, दुनिया कहेगी बड़ा नकम्मा है ते चोर है, चोर का किरदार बन गया, किसी का जेब कतरे का किरदार बन गया, किसी का ठग का किरदार बन गया, झूठ बोलने का किरदार बन गया, किसी का संत का भले पुरख का किरदार बन गया, कईयां नूं कहने ते रब वर्गे बंदे ने, उन्हां दा रब वर्गा किरदार बन गया। जो कुछ असी कर्म करते हैं वो साडी शख्सियत की सिरजना करता है। एक एक इट लगन दे नाल जिवें मकान बन जाता है, तगड़ा एक महल बन जाता है, एक एक कर्म साडे अंदर फिर साडे किरदार की उसारी करता है। इस करके गुरबाणी कहती है मंदा मूल न कीचई दे लम्मी नदर निहाली है। जिंदगी अंदर कोई भी कर्म करने तो पहला बड़ी दूर दृष्टि वरतनी चाहिए है, क्योंकि एक एक कर्म ने साडे अंदर उसारी करनी है, साडे अंदर को सिरजना करनी है। एक कर्म ही साडे अंदर उसारी करते हैं। भगत जी कहते जदों मौका मिलिया उदों ते असीं एक जहाज बनाया नहीं, बेड़ा बनाया नहीं, ताकि असीं औखे समय तो उस बेड़े ते बैठ के बाहर निकल सकीए। जदों तुहाडी जिंदगी च विपता आउंदी, औखा समा आउंदा है, हर मनुख की जिंदगी च आउंदा है, आउणा है, उस औखे समय तो तुहानूं कोई धन नहीं बाहर कढ सकदा, उस औखे समय तो तुहानूं कोई तुहाडा रिश्तेदार संबंधी जां रुतबा नहीं बाहर कर सकदा। उस औखी पीड़ा तो मुक्ति केवल तां केवल तुहाडे मनोबल ने देनी है। कोई दवाई नहीं तुहानूं दुख तो मुक्त कर सकती, दवाई कुछ चिर लई बेहोश कर सकती है, लेकिन दुख तो मुक्त नहीं कर सकती। उस पीड़ा तो मुक्त तुसीं होना है अपने आत्म बल करके। वो आत्म बल ते तुहाडे अंदर तां पैदा होएगा जेकर उहनूं तुसीं पैदा करने दे लई कोई यतन कीता होएगा। करके सानू साडे सतगुरु जी ने अपने इस किरदार दे जहाज नूं कायम रखण दे लई बाबा कबीर साहब जी ने एक बड़ी प्यारी गल कही, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000 हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। साडी जिंदगी दे किरदार दा बेड़ा ते बड़ा जर्जरा जिहा पुराना जिहा, जिहदे च हज़ारां ही छेक ने, अनेकां अवगुण ने साडी जिंदगी च। जहाज च छेक होए ते उधर ही पानी वड़ जांदा है। साडी जिंदगी ते अनेकां ही पोल ने, अनेकां ही काणा, साडी जिंदगी च अनेकां ही गलतियां ने जिथों झट बुराइयां साडे अंदर वड़ जाणियां ने, असीं बच ही नहीं सकते। निक्की जी गल ते असीं कमज़ोर हो जांदे आ, निक्की जी गल ते असीं विक जांदे आ, निक्की जी गल ते असीं झुक जांदे आ, निक्की जी गल ते आपां किसी दी आन मन जांदे आ। मनुख होना एक बहुत वड्डा रुतबा है। मनुख ये नहीं है जन्म लिया खादा पीता मौज मेला माणिया ते चल गया, ये तो है मनुख नूं अपनी हैसियत का अपने रुतबे का ज्ञान नहीं है। इस करके है मनुख होना एक बहुत वड्डा रुतबा है, बड़ी वड्डी वडियाई है। पर वड्डी गल है कि मनुख नूं अपनी वडियाई का ही नहीं पता। जे वडियाई का नहीं पता तो सतगुरु जी की बाणी कहती मनुख विच ते दूसरियां जूना च अंतर ही कोई नहीं है, बराबर ही है। आमन आए सृष्ट में बिन बूझे पशु ढोर। आपां इस धरती ते आए जे सानू पता ही नहीं आपां की हाँ, की लैण लई आए हाँ, साडी हैसियत की है, साडी वैल्यू की है, ते असीं भी पशु ढोर गवार हाँ। पशु भी खांदे ने चले जांदे ने, पशु भी सौंदे ने चले जांदे ने, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं चले जाते हैं। असीं ते पशुओं तो अगे चल गए। पशु जिहड़े अपने दिन दे खाण जोगा ही कमाउंदे ने, सौ जांदे ने, सवेरे फिर मिल जांदा। बंदा तो कहंदा लुट खसुट कर लो। असीं पशुओं तो इन्ने नीवें चले गए कि पशु जिहड़ा ना अपनी कदी बरादरी के लोगों को मारदा नहीं है। तुसीं देखो पशु सगों इकट्ठे होकर रहिंदे ने। आ डिस्कवरी ते बड़े बड़े वधिया प्रोग्राम आउंदे ने। पशु जिहड़े ने वो अपने विरोधियों तो किवें इकट्ठे होकर बचाव करते हैं। ते मनुख तां हुण अपने तौर पर संगठित भी नहीं रहा। मनुख दा आपसी इकट्ठ ही किते नहीं। किसी मुल्क चल जाओ, किसी समाज चल जाओ, किसी बरादरी चले जाओ, तुसीं किसी धड़ेबंदी चले जाओ, एक एक थां दे अंदर अनेक ही मनुख दे अंदर धड़ेबंदियां बड़ियां बैठियां ने। मनुखता तो इन्ना डिग गया कि मनुख होने के नाते भी इकट्ठा नहीं है। इसदा मतलब कि इनू अपनी हैसियत का अपने रुतबे का ज्ञान नहीं है। मनुख की गुलामी का कारण यह है, मनुख के दुखों का कारण है कि मनुख नूं अपनी वैल्यू का, मनुख नूं अपने रुतबे का, मनुख नूं अपनी पॉसिबिलिटी का पता नहीं है। यह है कारण। वैसे मनुख इन्ना महान है कि मनुख विच ते रब विच अंतर ही कोई नहीं है। रब है ही मनुख दे अंदर। जे आपां सही शब्दां च कहिए मनुख ही रब है, मनुख ही रब है, रब किते बाहर नहीं है। पर क्योंकि मनुख नूं गुलाम बनाने वाले लोगों ने कहता रब दक्षिण विच है, लभदा फिर उधर जाके रब पश्चिम विच है, रब पूर्व विच है, रब धरती च हेठ है, रब आकाश च है। ना बंदा आकाश ते जा सके ना रब नूं मिल सके। फिर कहता जे मिलना है तो यह जिंदगी तो बाद ही मिलेगा।
ना बंदा है जिंदगी छड़ेगा, मुड़ के किहड़ा आके किसी ने कहना कि मैं इन्ना कोई दान दिता मैनूं मिलिया ही नहीं। तुसीं बाजारों कोई चीज़ खरीदो, वो जे किते ठीक ना निकले असीं दुकानदार नूं जाके कह सकते वे इन्ने पैसे दिते ने, आ चीज़ तो तेरी ठीक नहीं निकली, आपां कोई ना कोई यतन कर सकते हैं। हुण जिन्हों लारा ये लै दिता कि मरण तो बाद तैनूं रब मिलेगा, ए कुछ कर लै, इन्हें दान कर लै, इत्थे नहा लै, इन्हें पुण्य कर लै, इन्ना जप तप कर लै, मरण तो बाद रब मिलेगा, मरण तो बाद सचखंड मिलेगा, मरण तो बाद मुक्ति मिलेगी। उन्हें अगला मर गया, मिलिया जां नहीं मिलिया, खाण पीण वालियां ने अपनियां मौजां माण लियां, अगला जिहड़ा सी उहनूं तोड़ दिता अगली दुनिया नूं, उहने मुड़ के आउणा नहीं है, ना इत्थों किसी परिवार दे जी नहीं जाके देखना। परिवार दे जीआं नूं भी इहो जिहा लारा लाया कि इत्थे श्राद्ध करो, अगे मिल जाणगे उहनूं जाके, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ पाठ करा दो, अगे ਉਹਨੂੰ मिल जाएगा जाके। परिवार उदों ज़्यादा भरम भुलेखियां च पै गया। यह है भरम भुलाणियां वाली अवस्था। गुरबाणी साडे भरमां नूं कटदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे कि ऐसे जिंदगी च मनुख दे अंदर परमात्मा है, पर मनुख नूं अपनी वडियाई दा पता नहीं है। आपां जिहड़ियां बुराइयां च घिर चुके हैं, फस चुके हैं, इन्हां बुराइयां तो निकलण दे लई सानूं कोई ना कोई शख्सियत बनाउणी पैगी, कोई ना कोई अपने अंदर बल पैदा करना पएगा। बल साडे अंदर ही है, साधन साडे अंदर ही है, साधन बाहर नहीं है, पर उस साधन का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान तो बिना जिंदगी अंदर कामयाबी नहीं है। तुसी डॉक्टर भी बनना है, उस लाइन का ज्ञान कितों मिलता है ना, जानकारी मिलती है। तुसी इंजीनियर बनना है, उस लाइन का तुहानूं कितों सोझी मिलती है। तुसी जिंदगी बिजनेसमैन बनना है, उस लाइन की सोझी कितों मिलती है। तुसी जिंदगी कुछ भी बनना है, उस लाइन का कितों तो सानूं सेध मिलती है, गाइडेंस मिलती है। कोई कॉलेज ने, स्कूल ने, इंस्टीट्यूट ने। जे तुसी जिंदगी अंदर एक सफल इंसान बनना है तो वही सोझी जी है सतगुरु पासों मिलनी है। ज्ञान तो बिना प्राप्ति नहीं होनी। दरअसल धर्म है ही ज्ञान है। जिथे ज्ञान नहीं वो धर्म नहीं, पखंड हो सकता, अडंबर हो सकता है। गुरबाणी का यह वचन जहां ज्ञान तह धर्म है। धर्म उत्थे है जिथे ज्ञान है। जे तुसी कहो जी केवल श्रद्धा नाल गल बन जाएगी, श्रद्धा बड़ी उत्तम है, बड़ी महान है, श्रद्धा बड़ी जरूरी है, पर श्रद्धा नाल गल नहीं बननी। श्रद्धा दे नाल ज्ञान बड़ा जरूरी है। इस करके सतगुरु जी ने सानू गुरबाणी ने ज्ञान दिता है। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कहते कि आपां फस गए इस घुमन घेरी दे अंदर, आपां फस गए समुंदर दे अंदर। इस समुंदर तो बाहर निकलने के लिए एक तरीका है कि वाहिगुरु जी के चरणों च अरदास करिए कि परम पीत निवार ठाकुर गले हो अपनी ओर। वाहिगुरु जी सानू इस भरम भटकना तो मुक्त करके अपने वाल खिंच लो, अपने वाल लै जाओ। तो ये बाहर निकलने की एक तरीका है कि संत संग हर चरण बोहित उधर ते लै मोर। वाहिगुरु जी मैनू संत संगत बख्शिश करो, गुरु की संगत बख्शिश करो। आपां अरदास करते सही प्यारियां मिलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। अरदास बहुत जरूरी है। देखो सतगुरु जी ने सानू अरदास करने की गुरबाणी च थां थां ते प्रेरणा की है। इन्हां बुराइयां तो, अवगुणां तो जां जिंदगी अंदर दुखां तो अपनी जित नाल बंदा बच ही नहीं सकता, जिन्ना मर्जी सियाणा होवे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बचन को चार बरन चौवां के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगड़ स्वरूप सियाणे पंचो ही मोह दलीरे। चौ वर्णा के लोग, छियां शास्त्रां नूं पढ़न वाले, छियां दर्शनां के लोग, बड़े बड़े सोहने, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े विद्वान, इन्हां सारियां नूं इन्हां अवगुणां ने दल दिता। जिवें आपां हत्थ दे नाल नहीं कोई चीज़ नूं मल दिंदे, दल दिता इन्हां चीज़ां नूं। इन्हां तो कोई को बच नहीं सकिया। बाबा कबीर साहब जी कहण लगे सरपणी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। यह माया की मार तो ते ब्रह्मा वर्गे नहीं बच सके। ब्रह्मा नूं देवता कहंदे ने। हिंदू संस्कृति च गिणिया जाता कि ब्रह्मा तो उत्पत्ति हुई है जगत की, पर उसे ब्रह्मा दीयां कहानियां ने कि वह ब्रह्मा अपनी धी दे उपर मोहित हो गया, अपनी धी वल देख के वह मन लुभाएमन हो गया। कहानियां ने ग्रंथां दे अंदर। और एक कथा है, एक जमुना नगर के नेड़े तीर्थ है कपाल मोचन, कपाल मोचन। उत्थे तुसीं जाओगे तो तुहानूं ये कथा मिलेगी कि एक दिन ब्रह्मा जी की बेटी स्नान करके आ रही, केस खिलारे ने, तो ब्रह्मा की नज़र पै गई। तो ਉਹਦੇ मन च बुराई आ गई अपनी बेटी वाल देख के। उधर देख रहा है तो शिव जी ने कहने देखिया भी ਇਹਦਾ मन बेईमान है। कहते लड़की जी दूजे बने हो गई, उन्हें उधर अखां ला लिया, तीजे बने उधर अखां ला, लड़की थां नूं उड़ गई, उन्हें अखां उपर लगा लिया देखने लई। एक कहानी है। तो शिव जी ने तरसूल मार के वह सिर वड़ दिता, उन्होंने लगी ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या। कपाल कहते खोपड़ी नूं, कपाल मोचन, कपाल कहते खोपड़ी नूं।
हुण ब्रह्म हत्या लग गई तो हुण उहदे तो मुक्त होने लई तीर्थां ते फेरे है। ये जिथे गोपाल मोचन इत्थे आके दी ब्रह्म हत्या वो जिहड़ी खोपड़ी दी हत्या लगी सी लथी। ये कहानियां ने देवी देवतियां दीयां। गुरबाणी कहंदी ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, जिन्हें ब्रह्मा नूं विष्णु नूं महादेव नूं माया ने छल लिया, उस माया तो असीं किवें बच सकते हैं? अपने जतन नाल नहीं बच सकते। इहदे तो इक्को एक तरीका है कि अरदास करिए कि राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ मेरे, राख पिता प्रभ, राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे, खेद करें अर बहुत संतावें, आयो शरण तुहारे। हे वाहिगुरु जीओ, ये पंज झगड़ालू पंज विकार जिहड़े जिंदगी अंदर मेरी बेड़ी नूं डोबण लई तत्पर ने, इन्हां तो बचण दा कोई साधन नहीं। बड़े यतन कर ले, कर हारिओ, अनक बहु भांति छोड़े कत हूँ नाही, किसी तरीके नाल छड़दे नहीं। पर एक मैनू पता लगा, एक बात सुन ताकी ओटा साध संगत मिट जाही। मैनू पता लगा कि सत संगत च आके इन्हां तो बचिया जा सकता है। महाराज जी मेरे ते कृपा करो, मैनू सत संगत विच लै आओ। संत संग हर चरण मोहित, उदर ते लै मोर। वाहिगुरु जी संत संग, गुरु दी संगत, सत संगत, ये इत्थे आके वाहिगुरु जी तुहाडे चरणों का जहाज मिलता है, तुहाडे चरणों नाल सांझ बनदी। तुहाडे चरण जिहड़े जहाज दी नियाई ने, जिन्हां नाल सुरत जुड़ गई, इन्हां बुराइयों तो बाहर निकल जाती है। जदों भी सुरत परमात्मा के नाम नाल जुड़दी है, देखो मुख तो जपदे आ, वाहिगुरु जी की बख्शिश है, वडभागी आपां सारे जिहड़े मुख तो जपदे ने, बहुत सत्कारयोग ने। मुख तो जपना पहला पड़ाव है, पहली अवस्था है। पर मुख तो जपदे जो सुरत करके जपांगे, सुरत जुड़ गई परमात्मा के प्यार विच, उदों साडा उद्धार हो जाएगा। सुरत करके ही आपां उगण करदे ना। देखो मुख तो कई वारी वाहिगुरू वाहिगुरू करदे, सुरत साडी होर बन्ने लगी हुंदी है, ध्यान होर बन्ने हुंदा है। इस करके जो सुरत भी रब वाले बन्ने लग गई, उदों साडा उद्धार हो जाएगा। फिर कोई विकार कोई औगण साडे ते भारू नहीं हो सकेगा। इस करके साहब जी कहते संत संग हर चरण मोहित, उधर ते लै मोर। हे वाहिगुरु जी बख्श करो, मैनू संत संगत विच लै आओ, गुरु की हजूरी च लै आओ। उत्थे तुहाडे चरण जिहड़े जहाज दी न्याई ने, उन्हां नाल मेरी सांझ बने, ताकि उन्हां चरणां दे राहीं मेरा उद्धार हो जाए। उन्हां चरणां दे राहीं उधर ते लै मोर, मेरा उद्धार कर लो उन्हां चरणां नाल जोड़ के। गर्भ कुंड में जनेह धारिओ, नहीं बिखे बन मैं होर। धन गुरु अर्जन देव जी सानू ज्ञान दिंदे आ, वाहिगुरु जी के चरणों च अरदास करदे एक गल कह रहे हैं, दुनिया के अंदर जिन्ने दुख ने, जिन्नियां बुराइयां ने, भावें बाहरी तौर पर ने ते भावें साडी सुरत करके ने, इन्हां तो बचण दे लई मनुख बड़े यतन करदा है। आपां देखदे हां बाहरले यतन आपां सारे ही करदे हां कि इस तरीके नाल असीं दुख तो बच जाइए, इस तरीके नाल परेशानियां मिट जाण। मनुख थोड़ा जिहा दुनिया वाले बन्ने तो हटदा है ना, तो फिर धार्मिक बन्ने लगदा है। धार्मिक तौर पर मनुख यतन की करदा है, किते नहातियां सानूं मुक्ति मिल जाएगी, किसी तीर्थ ते जाया मुक्ति मिल जाएगी, किसी खास बंदे कोल बैठिया मुक्ति मिल जाएगी, कोई खास कर्म कीते हैं जिन्होंने आपां धार्मिक कर्म कीते कहने हैं, दान पुण्य कीते मुक्ति मिल जाएगी। बड़े साधन बंदा करता है। लेकिन सतगुरु साहिब जी महाराज कहते ने एक गल चेते रखो, परमात्मा ने सानू जिंदगी दी है। ए जिंदगी दे अंदर जिहड़े दुख ने, इन्हां दुखों तो पहला असीं बड़े दुख भोग आए हैं, बड़े औखे समय च आए हैं। गुरबाणी सतगुरु जी ने सानू वो गल चेते कराई, बंदिया मात गर्भ दे विच तू बच रहा सी, माता के उधर मैं प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारीए। तू ऐस सृष्टि च आउण तो पहला
ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਵੇਸੀ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਨ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਾਂ? ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸਦਕ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ। ਪਰ ਜੋ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਬਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਤਪ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੇ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ, এনवायरमेंट ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਲਿਵ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਕੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਮੈਣਾ ਅੱਗ, ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਖਤ ਸਰਣ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ, ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਧਾਰਿਓ। ਬੰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ, ਦੇਹ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਧਾਰਿਓ, ਬਿਖੇ ਬਨ ਮੈਂ ਹੋਰ। ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਖੇ ਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ये विखे बन है, विकारां दा जहर दा एक जंगल है। मनुख ने बना लिया, मंज विसूला बाग बना लिया। इस विखे बन दे विच भी परमात्मा तो बिना साडा कोई मददगार नहीं है। वाहिगुरु तो बिना सानू कोई बचा नहीं सकता। हर सगत सरन समरथ नानक आन नहीं निहोर। साहब कहते कि वाहिगुरु ही समरथ है, वाहिगुरु ही साडी रखिया करन दे समरथ है, शरण देण दे समरथ है। शरण देण दा अर्थ है कि ओदी शरण च ही आपां बच सकदे हां, नहीं तो होर कोई सानू बचा नहीं सकता। असीं आसरा लैने आ, बड़े लोगों की शरण लैने, असीं सोचते वड्डे रुतबे वाला सानू बचा लेगा, पर नहीं बचा सकता। वो समर्थ नहीं है शरण देण दे। असीं सोचते कोई होर साधन इधर उधर दे कर्म धर्म सानू बचा लेणगे, पर नहीं बचा सकते। इस करके सतगुरु जी ने सानू एक प्रेरणा की कि हर बिन आन न कोई समर्थ। परमात्मा तो बिना कोई समर्थ नहीं है। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगे सब निमन। हर सज्जन दामन लग्गिया, किसी ना दे बन। बंदे आ उस परमात्मा नाल जुड़ जिहदे अगे सारी दुनिया जुड़दी है, झुकदी है। उस परमात्मा नाल जुड़ेगा तो परमात्मा तेनू होर किसी अगे नहीं तोड़ देगा, कोई तेरे ते रो पा ही नहीं सकेगा। इस करके सतगुरु साहब जी कहते हैं कि ऐस विखे बन दे अंदर विकारां तो, दुखां तो, बुराइयां तो बचन दे लई, इस संसार समुद्र अंदर अपनी जिंदगी की बेड़ी नूं पार लगाउण दे लई आन नाही होर। परमात्मा तो बिना होर कोई रस्ता नहीं है। ते नानक आन नहीं नहोर। जिस मनुख नूं पता लग गया कि परमात्मा समर्थ है, क्योंकि परमात्मा की गल तां सारे आपां करदे हां, परमात्मा का नाम ही कई तरीकों नाल मनुख लैंदे ने, परमात्मा के प्रति कई तरह के धर्म कर्म मनुख करते हैं, सारे रब करके करते हैं। पर परमात्मा की समर्था की है, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ज्ञान नहीं है। परमात्मा किहो जिहा है, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही नहीं। लोगों ने तो रब जिहड़ा पत्थरां 'च मन लिया, लोगों ने रब कबरां 'च मन लिया। वो जिहड़ी गल लिखी ना, एक विद्वान ने बड़ी सुनी कि किसी ने रब चूहे ते चढ़ा लिया, किसी ने रब अपना गरड़ ते चढ़ा लिया। रब भी वक्रे वक्रे लोगों ने बना ले, जिन्नी जिन्नी सूझबूझ बंदे दी उह जिहा उन्हें रब बना लिया। परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है मनुख। जिस मनुख नूं ज्ञान हो जाता है, वो फिर पता की कहते हर सख्त शरण समरथ नानक। हे नानक, परमात्मा ही शरण देण दे समर्थ है, परमात्मा ही तुहाडी रखिया करन दे समर्थ। उहदे च ये शक्ति है, उहदे च ये पावर है। उही तुहानूं दुखां तो बचा सकदा है, उही तुहाडा उद्धार कर सकदा है। ते जिन्हों ये पता लग गया आन नहीं नहोर, वो होर किसी की मुताजगी नहीं करता, होर किसी की कान नहीं रखता। वो तो बेपरवाह सदा रंग हर कै वाहिगुरु जी दे रंग जुड़िया रहिंदा। वो तो बड़ा गज वजा के गल कहंदा, जां तू मेरे वल है तां क्या मुछंदा। वाहिगुरु जी जदों तुसीं मेरे वल ते मैनूं किसी की मुताजगी की की लोड़ है, मैनूं किसी के एवें लिरड़ियां लैण दी जां किते जाके नक रगड़न की की लोड़ है। जदों वो परमात्मा मेरे वल है, जाका मीत साजन है समियां, तिस जन को काकी कमियां। उस मनुख नूं कादी कमी है। पर यह ज्ञान मिलता है गुरु पासों। सतगुरु जी ने इस मुखवाक दे राही सानू ये सोझी दिती कि आपां जिंदगी दे अंदर अपने अंदरों बड़े कोरे हाँ, साडे अंदर खोट वसी हुई, कोरापन वसिया होया, परमात्मा दा प्यार नहीं। उहदा कारण कि साडे अंदर भरम ने, उन्हां भरमा करके असीं भटकणा च पए होए आ। अरदास करिए वाहिगुरू जी, इस भरम करके संसार समुंदर च असीं गोते खा रहे हैं, जिथे बड़े बड़े डूंघे टोए ने, खाते ने, जिथे साडी जिंदगी की बेड़ी नूं बर्बाद करने लई बड़े साधन ने। इहदे तो बचाउण लई सानूं सत संगत विच लिआओ, गुरु कोल लिआओ, ते गुरु राहीं सानूं ज्ञान मिले, गुरु राहीं परमात्मा दे चरणां दा आसरा मिल जे जो जहाज़ वर्गे ने। जदों गुरु राहीं आपां परमात्मा दे प्यार जुड़ गए, फिर पता लगेगा कि जिस वाहिगुरू जी ने सानूं माता के उदर च बचाया है, इत्थे भी उन्हें बचाउणा है, यह दुनियावी अग तो भी उन्हें बचाउणा है। ते उस परमात्मा की शक्ति दा, समर्था दा, वडियाई दा जिस नूं पता लग गया, आ नहीं होर किसी की मुताजगी नहीं करता, होर किसी की को ओट आसरा नहीं लैंदा। गुरु चरणा च अरदास करिए, वाहिगुरू जी साडे विच रहमत करो, गुरबाणी राहीं सानू उस परम पिता परमात्मा की वडियाई दा, उसकी समर्था का पता लग सके, तो असी उहदे प्यार में जुड़ के अपनी जिंदगी की बेड़ी नूं ठीक ठाक पार उतार सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी खिमा बख्श देनी जीओ। सतगुरु सारियां संगतां दे उपर मेहर प्रयात रखण, प्यार सहित सारे ही बुलाओ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।